So, in this video, I'm supposed to discuss the topic which is left in the class. That was the last topic that we have to discuss. As you know that we have talked about abnormal molecular masses. We have discussed about dissociation and association of molecular masses, association of solute particles. That when the solute particles enters into the solution phase, means when they are added in solvent, they either go dissociation, they either undergo dissociation or association. So these masses which will be considered after having the concept of association and dissociation will be called abnormal molecular masses. Considering the abnormal molecular masses, Van 't Hoff created a factor that is called I Van 't Hoff factor. I के फॉर्मूला है, आप इसको तीन तरह से निकाल सकते हैं. नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास. नॉर्मल molar mass is the mass that you can calculate theoretically, whereas observed molecular mass will be the abnormal molecular masses. I can also be calculated in terms of colligative property, like observed colligative property upon calculated value of colligative property. It can also be calculated in terms of number of moles, that is total number of moles after association or dissociation divided by number of moles of particles before association और डिसोसिएशन. ठीक है. अब अगर आप का एसोसिएशन होता है, तो मैंने बताया था एसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रिड्यूस्ड एंड एबनॉर्मल मोलर मास जो होता है वो बढ़ जाता है. एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस. अब ऐसे केस में अगर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है, तब अगर हम ये फॉर्मूला नंबर 1 लेके चलते हैं, ये वाला, दिस फॉर्मूला वी आर टेकिंग एज 1, इसके हिसाब से आई की जो वैल्यू आएगी वो आई मस्ट बी लेस देन 1 आना चाहिए. एंड सिमिलरली इफ़ डिसोसिएशन इज़ टेकिंग प्लेस, that means number of particles are increased and abnormal mass is decreased. सो आई की वैल्यू जो है 1 से बड़ी आनी चाहिए. 1 के आसपास ही घूमती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं आती. इट इज़ 1 और मैक्स टू मैक्स ये 2 तक आती है. और ये इफ़ लेस देन 1 है, then it is showing that association is taking place, and if it is more than 1 then it is showing dissociation taking place. तो I से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि what is happening when a solute is entering into the solution phase. And also if I comes out to be equal to 1, तो ऐसे केस में neither association nor dissociation, right? ऐसा is very rare, you can find this out. अब after having the concept of I, all the equations of colligative properties are being modified. जैसे you know that relative lowering of vapor pressure, first आपकी colligative property है relative lowering of vapor pressure. इसके केस में हमारा इक्वेशन बनता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई ए. अभी काई को हम एक्सपैंड करके लिख देते हैं एन बी अपॉन एन ए, दैट वी हैव लर्नड. तो दिस वाज द अर्लियर इक्वेशन, काई बी सॉरी. सो हम यहाँ पे आई को मल्टीप्लाई करेंगे कंसिडरिंग द आई फैक्टर और द वैन 't हॉफ फैक्टर, एसोसिएशन डिसोसिएशन को कंसिडर करते हुए. सिमिलरली for elevation of boiling point, the equation was delta TB is equal to KBM. तो हम यहाँ पे I लगाएंगे. Similarly for the
freezing point depression, delta TF is equal to IKFM, and for the osmotic pressure, our osmotic pressure equation was pi is equal to CRT. तो यहाँ पे आप I को मल्टीप्लाई करो, मतलब इन सभी के केसेस में हम वेंट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. एंड समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब कि किसी भी सोल्यूट के अंदर कितना % एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ है. तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन को निकालने के लिए हम इसको अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं. सो द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अगर आप NCERT में देखेंगे, इट विल बी अ लॉन्ग एंड वेरी heavy method to do. I'll be giving you a shortcut formula. Alpha is equal to for association, alpha is equal to 1 minus I upon 1 minus 1 upon n. ठीक है. एंड व्हाट इज़ n ओवर हेयर? n जो है आपका, ये अगर डाइमर बन रहा है तो ये वैल्यू 2 होगी, ट्राइमर बन रहा है तो ये वैल्यू 3 होगी. सो दैट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन. सिमिलरली फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. अगेन यहाँ पे जो n होगा वो आपका नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय सोल्यूट, मतलब सोल्यूट डिसोसिएट होकर के कितने आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है. लाइक NaCl में n की वैल्यू 2 है, एंड फॉर CaCl2 द n वैल्यू इज़ 3. सो लाइक दिस यू कैन हैव द शॉर्ट फार्मूला. डायरेक्टली आप इसका यूज़ करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसोसिएशन और डिसोसिएशन. Right, question number 19.5. You can see the question over here. This is NCERT solved question. Let's see this. 19.5 gram of CF2FCOOH, this I have given in the assignment also, is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point is observed 1 degree centigrade. Calculate the Van't-Hoff factor and the dissociation constant of fluoroacetic acid, whereas Kf of the water is given 1.86. बच्चों हमेशा याद रखना Kf ऑफ वाटर 1.86 है, ये कई बार नहीं भी दिया होगा. तो वाटर के केस में आपको Kf और Kb दोनों को याद रखना है. फॉर वाटर द Kf इज़ 1.56 एंड द Kb इज़ 0.52. ये वैल्यूज़ जो हैं आपकी स्टैंडर्ड है, इनको याद रखेंगे. तो ठीक है, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं Van't-Hoff फैक्टर. अब सबसे पहले यू हैव टू टेक आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड. ना 19.5 ग्राम दिया हुआ है और 500 ग्राम वाटर में इसको हमने डिज़ोल्व किया है. तो हमारा मास इन ग्राम हो गया 19.5. सो वी हैव टेकन 19.5 डिवाइडेड बाय 78. 78 इज़ द मोलर मास ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड. सो the number of moles comes out to be 0.25. Now you have to take out molality. Molality is number of moles of the solute upon the mass of water in kg. So number of moles that you have got is 0.25 and the mass of water is 500 grams, so it is converted into kg, that is 0.5 kg. आप इसको 500 यहाँ लिख के ऊपर 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. सो आपकी जो मोलारिटी यहाँ कैलकुलेट हो रही है 0.5 मोल पर kg कैलकुलेट हो रही है. Now once you have got molality, अब आप निकालोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है. यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ऑलरेडी गिवन 1 डिग्री. सी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब आपका डिप्रेशन क्या है, डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ जो आपका और नॉर्मल से कम हुआ था. ये आपका इक्वेशन है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम. यू हैव टू कैलकुलेट आई. सो डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ एम. नाउ डेल्टा टी एफ इज ऑलरेडी गिवन 1 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज द change in the temperature of freezing.
KF की वैल्यू वाटर की 1.86 होती है, मोलालिटी यू हैव कैलकुलेटेड, सो आई हेंस कैन बी यू कैन गेट इट 1.075। अब आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आई है, इसका मतलब है कि आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि फ्लोरोएसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होता है, आपको इक्विलिब्रियम सी इन दिस क्वेश्चन, यहाँ आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है आपको के सी की वैल्यू निकालनी है, जो हमने लास्ट ईयर वी हैव लर्नड इन इक्विलिब्रियम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सो यू कैन सी आई निकल गया यहाँ तक, राइट। देन वी हैव टू राइट द डिसोसिएटिंग इक्वेशन फॉर दिस, लाइक fluoroacetic acid is divided into hydrogen ion and the fluoroacetate ion। इनिशियल कंडीशन इसकी, इनिशियल कंसनट्रेशन इसकी 0.5 थी, ये जो आपने यहाँ कैलकुलेट करी है मोलालिटी, और ये दोनों ज़ीरो थे। एट इक्विलिब्रियम 0.5 में से 1 अल्फ़ा निकल गया, तो यहाँ पे 0.5 अल्फ़ा 0.5 अल्फ़ा बन गया। ये वो जो सिंपल वाला है कि एक इसमें से n पार्टिकल निकलते हैं तो इसके भी n और इसके भी n बनते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट यू हैव गॉट इज एट इक्विलिब्रियम इज, ये तीनों को ऐड करोगे आप, 0.5 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 0.5 अल्फ़ा प्लस 0.5 अल्फ़ा, सो टोटल कम्स आउट टू बी दिस मच। तो आई की वैल्यू जो है आपकी ये आएगी 0.5, ये आपका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स वाला, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर और बिफोर डिसोसिएशन, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको थर्ड फॉर्मूला लिखवाया था, दिस ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला है। सो दिस इज़ द पार्टिकल, ऊपर वाला जो है आफ्टर डिसोसिएशन, एंड दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सॉल्विंग देम आउट वी हैव गॉट 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1, दैट इज़ दिस मच। अब यहाँ पे आई की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट हो गई है, तो इन सब का एक शॉर्टकट आप ले सकते हैं रादर देन डूइंग दिस ऑल। जो अभी आपको मैंने डायरेक्ट फार्मूला दिया है, अगर मुझे अल्फ़ा ही निकालना है, सो वी हैव गॉट दिस डायरेक्ट फार्मूला ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्ट फार्मूला ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब आई हमारा यहाँ पे कैलकुलेटेड था बच्चों 1.07 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना है, क्योंकि यहाँ पे 2 आयंस में ये डिवाइड हुआ है, सो 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.07। ठीक है, तो आप देखो आपने ये डायरेक्ट फार्मूला रखा और इसको सॉल्व कर दिया। ये सब फिलहाल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सारा कुछ कैलकुलेशन। ठीक है, इसकी जगह पे तुम सिर्फ आई निकाल करके आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे रखोगे और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस वे यू हैव गॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा है यहाँ भी देख लो यही आया है, यहाँ पर भी यही आया है, अल्फ़ा निकल गया। अब के तुमको निकालना है, के लिए क्या करो, दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको पता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास में 2 प्रोडक्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय ये है, तो ये रख दिया अपॉन ये। अल्फ़ा की वैल्यू तुम्हें ये मिली हुई है, यू कैन पुट द प्लेस अल्फ़ाज वैल्यू है, एंड हेंस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये सारा स्टेप जिसको कॉम्प्लिकेट लगता हो, हम डायरेक्टली इसको स्किप आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को लेके। ठीक है, तो स्ट्रेट वे आप इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी आप देख सकते हो। दिस इज़ आई थिंक फॉर अगेन डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में तो अभी मैंने आपको समझाई दिया। तो आई विल गिव यू वन क्वेश्चन सॉल्व, एक फ़ोटो भेज दूँगी जिसमें मैं आपको एसोसिएशन का भी फॉर्मूला यूज़ करके आई कैन टेल यू दैट हाउ टू सॉल्व इट, राइट। So my suggestion is follow this formula, straight away you can get alpha, you can skip all this, right? And apart from this, इस chapter से there is for sure one numerical will come, and I hope I have explained you this earlier also। आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें they may ask you about calculation of any colligative property or any एसोसिएशन डिसोसिएशन इंक्लूड करते हुए या आई फैक्टर निकालते हुए। तो इस चैप्टर से एक मस्ट क्वेश्चन होता है विच इज़ योर
which is your numerical based on any colligative properties.